Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 8 pronouns of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topic was pronouns. So students, included this topic, we have read a paragraph and we have also read about pronouns, which is page number 35. And students, we have read and solved exercise to answer the following questions of this chapter 8 in our English language notebook in our last video. And students, today's our topic is also same because today we are going to continue this topic pronoun. And since included this topic, today we will read about pronouns and we will read and solve exercise A, which is page number 36 and 37 in our English language book Cornerstone. And students, after it, we will read and solve exercise A. Choose the correct words of this chapter 8 in our English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please press faster attention to class and listen to my words clearly because today we are going to read about pronouns. Okay, so all students, look at this page number 36. Let's see. Now look at these pictures and revise the pronouns I, you, he, she, it, they and we. Okay. Now it's mean अब look at means देखिए these means in pictures means चित्रों and means saw revise it means दोहराइए the pronouns it means सर्वनाम I means मैं you means आप या तुम he means वह she means वह it means यह है they means वे and means और we means हम. Okay, now look at these pictures and revise the pronouns I, you, he, she, it, they and we. It's mean अब इन चित्रों को देखिए और pronouns it means सर्वनामों आई इट्स मीन मैं यू इट्स मीन आप या तुम ही इट्स मीन वह सी इट्स मीन वह इट मीन्स यह है दे मीन्स वे एंड मीन्स और वी मीन्स हमको दोहराइए. ओके, सो स्टूडेंट्स लुक एट दीज पिक्चर्स. ओके, इन पिक्चर्स को देखिए और इन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस है ना उन्हें रिवाइज करिए. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स सी फर्स्ट पिक्चर. स्टूडेंट वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ही इज़ अ बॉय एंड ही इज सेइंग दैट आई एम रोहन. ओके, एक लड़का है और स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि आई एम रोहन. ओके, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रोहन, आई एम रोहन इट्स मीन मैं रोहन हूँ. ओके, स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस आई इट्स अ प्रोनाउन. आई एक प्रोनाउन है सर्वनाम. ओके, स्टूडेंट लेट्स सी सेकंड नंबर पिक्चर. इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट हियर्स अ बॉय एंड अ गर्ल. ओके, स्टूडेंट्स दिस बॉय इज सेइंग दैट सी इज अंकिता. सी मीन्स वह, इट मीन्स है अंकिता. ओके, सी इज अंकिता इट्स मीन वह अंकिता है. सो स्टूडेंट इन दिस सेंटेंस सी इट्स अ प्रोनाउन. सी एक प्रोनाउन है. ओके, एक सर्वनाम है. एंड स्टूडेंट्स दिस गर्ल इज सेइंग दैट आर यू अनिल. ओके, आर यू अनिल इट्स मीन क्या आप अनिल है. ओके, so student in this sentence are you Anil, you it's a pronoun. You एक pronoun है सर्वनाम. Okay, student let's see third number picture. Student we can see in this picture that here's a boy and a girl and student the girl is saying that he is Ankit. He means वह, it means है अंकित. Okay, he is Ankit it's mean वह अंकित है. Okay, student so in this sentence he it's also a pronoun. he एक pronoun है, एक सर्वनाम है. Clear? Student let's see four number picture. It's a picture. We can see that here's a boy and a girl and both are saying that we are Santanu and Nishtha. We means हम, I means है Santanu and Nishtha. Okay, we are Santanu and Nishtha. It's mean हम Santanu और Nishtha है. Okay, so students the name of this girl is Nishtha and the name of this boy is Santanu. Okay, so and both are saying that we are Santanu and Nishtha. It's mean हम Santanu और Nishtha हैं. Okay, so in this sentence we it's a pronoun. we एक pronoun है सर्वनाम. Okay, student let's see next picture. Student we can see in this picture that here's a mother and a daughter and students mother is giving an umbrella to her daughter and mother is saying to her daughter that this is an umbrella, it is useful in rain. Okay, this means यह, it means है, and means एक umbrella में छाता. this is an umbrella it means ये एक छाता है. it means यह है, it means है useful it's mean उपयोगी. Okay, in rain it's mean बारिश में. this is an umbrella it is useful in rain. Okay, it's mean ये एक छाता है, ये बारिश में उपयोगी. ओके, बिकॉज स्टैंड्स अम्ब्रेला सेव अस फ्रॉम रेन. जो अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, वो हमें बारिश से बचाता है ना. ओके, सो स्टैंड्स इन दिस सेंटेंस दिस इज एन अम्ब्रेला एंड इट इज़ यूजफुल इन रेन. इट्स अ pronoun. it एक pronoun है. Okay, and students let's see next picture. Students in this picture we can see that here's a teacher and some children. Okay, and students the teacher is saying that I am a teacher, they are my students. Okay, I means मैं, M means हूँ, A means एक, teacher means शिक्षिका या अध्यापिका. I am a teacher it's mean मैं एक शिक्षिका हूँ और we can say also that मैं एक अध्यापिका हूँ. Okay, they means वे, R means है, माई मीन्स मेरे, स्टूडेंट्स मीन छात्र. दे आर माई स्टूडेंट्स इट्स मीन वे मेरे छात्र. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस आई एम अ टीचर, आई इट्स अ प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है एंड दे आर माई स्टूडेंट्स. इन दिस सेंटेंस दे आल्सो अ प्रोनाउन. दे भी एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दैट वी यूज़ आई व्हेन वी टॉक अबाउट माई सेल्फ. जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो हम आई का यूज़ करते हैं, आई मीन्स में. ओके, जैसे आई लाइक चॉकलेट्स. ओके, आई लाइक रोज़. ओके, तो जब अपने की बात करते हैं तो अपने के लिए हम जब हम अपनी बात करते हैं तो हम प्रोनाउन आई का यूज़ करते हैं, आई मीन्स में. एंड सिन व्हेन वी टॉक अबाउट
व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ एनी गर्ल, जब हम किसी गर्ल की बात करते हैं, किसी लड़की की बात करते हैं, देन वी यूज़ प्रोनाउन सी, तो हम प्रोनाउन सी का यूज़ करते हैं, एस एट ई, सी मीन्स वे, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर पर्सन, जब किसी अदर पर्सन की बात करते हैं, डज नॉट मैटर दैट ही इज़ अ बॉय एंड इज़ अ गर्ल, ओके, कि वह एक लड़का है कि एक लड़की है, ओके, ये मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब हम किसी अदर पर्सन की बात करते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़के, तो हम उसके लिए यू का यूज़ करते हैं, यू मीन्स आप या तुम, ओके। एंड स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ अ बॉय, जब हम एक बॉय की बात करते हैं, एक लड़का की बात करते हैं, देन वी यूज़ प्रोनाउन ही, तो हम ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ही सर्वनाम का यूज़ करते हैं, ओके, ही मीन्स वे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आई, ओके, when we talk about myself and other person, okay, when we talk about myself with other person, जब हम अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, ओके, आप अपने साथ अपनी फ्रेंड की बात कर रहे, अपने ब्रदर सिस्टर की बात करें, किसी की भी बात करें अपने साथ, तो स्टूडेंट्स वी यूज़ प्रोनाउन वी, तो हम प्रोनाउन वी का यूज़ करते हैं, वी मीन्स हम, ओके। जैसे वी आर प्लेइंग, ओके, हम खेल रहे हैं, ओके, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, ओके, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, क्लियर। एंड सेन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, देन वी यूज़ प्रोनाउन इट, तो हम प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं, ओके, तो हम सर्वनाम यह का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स ये। एंड सेन व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, ओके, जब हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी पर्सन, ओके, जब हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम दे का यूज़ करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, we have read about pronouns and I hope you must have understood this topic pronouns. You have no problem in this topic pronouns. Okay, students, now we are going to read and solve exercise A of this chapter, which is page number 36 in our English language book constant. Okay, so students, let's see exercise A. Students, so exercise A is choose the correct words. Okay, choose means चुनिए, the correct means सही, words means शब्दों, choose the correct word, it means सही शब्दों को चुनिए. Okay, so students, let's see first number sentence of this exercise A. Students, so first number sentence of this exercise A is Amrita and Vikram said, comma, inverted comma, I oblique V are going to the fair today, full stop, inverted comma, close. Okay, तो अमृता एंड विक्रम, इट्स मीन अमृता और विक्रम, सेड इट्स मीन कहा, सेड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा, ओके। आई ऑब्लिक वी, इट्स मीन मैं या हम, आर मीन्स हैं, गोइंग मीन्स जा रहे, टू दी फेयर, इट्स मीन मेला, फेयर मीन्स होते हैं मेला, टुडे मीन्स आज, ओके। तो स्टूडेंट्स, tell me what's the correct pronoun for this sentence, I or we, okay. Amrita, student, when we take this first number pronoun I, okay, then our sentence become Amrita and Vikram said I are going to the fair today. Amrita और विक्रम ने कहा कि मैं आज मेला जा रहा हूँ, it's correct. और student, when we take a we pronoun for this sentence, then our sentence become Amrita and Vikram said we are going to the fair today. It's mean कि अमृता और विक्रम ने कहा कि आज हम मेला जा रहे हैं. Okay students, tell me what's the correct sentence. अमृता और विक्रम ने कहा कि मैं आज मेला जा रहा हूँ, या अमृता और विक्रम ने कहा कि हम आज मेला जा रहे हैं. So students, your second number pronoun we, it's a correct pronoun because students, we have read that when we talk about myself with other person, जब अपने साथ किसी अदर पर्सन की दूसरे पर्सन की बात करते हैं, then we use pronoun we, तो हम pronoun we का यूज़ करते हैं. ओके, जैसे हम और मेरा कोई फ्रेंड अगर मानो कहीं जा रहे घूमने के लिए, फेयर जा रहे, मेला जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम मेला जा रहे हैं. ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं मेला जा रहे हैं, नहीं ना. तो स्टूडेंट्स, वी इट्स अ करेक्ट प्रोनाउन फॉर दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस बिकॉज स्टूडेंट्स इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस वी टॉक अबाउट 2 person. ओके, सो स्टूडेंट्स, take below this second number pronoun we, okay, and then your sentence become Amrita and Vikram said we are going to the fair today. It's mean अमृता और विक्रम ने कहा आज हम मेला जा रहे हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, turn your page forward and look at this page number 37 and let's see second number sentence. Students, our second number sentence is father says, comma, inverted comma, boys, comma, you oblique C should not shout so loudly. Okay, father it means पिताजी, says means कहा, okay, boys means लड़के, okay, you means तुम या आप, C means वह, should not shout it's mean नहीं चिल्लाना चाहिए, shout means चिल्लाना, so loudly it's mean बहुत अधिक तेज, so means बहुत अधिक, loudly means तेजी से. Okay, father says, boys, you see should not shout so loudly. Okay, so students, your given pronouns are first is you and second is she. Okay, so students, when we take a first number pronoun you, then our sentence become father says boys should not shout so loudly. It's mean पिताजी ने कहा कि लड़कों, ओके, कि लड़के तुम्हें या आपको बहुत अधिक तेज़ नहीं चिल्लाना चाहिए. ओके, पिताजी ने कहा कि बॉयज़ मीन्स लड़के, ओके, या बालको आपको बहुत अधिक तेज़ नहीं चिल्लाना चाहिए. एंड स्टूडेंट, व्हेन वी टेक अ सेकेंड नंबर प्रोनाउन सी, देन अवर सेंटेंस बिकम फादर सेज बॉयज सी शुड नॉट शाउट सो लाउडली. इट्स मीन पिताजी ने कहा कि लड़के वह बहुत तेज़ नहीं चिल्लाना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इट्स रॉन्ग व्हेन वी टेक अ सी. ओके, सी प्रोनाउन.
So students, your second number pronoun, see, it's a wrong, okay, because students, here we talk about more than one question. Here we talk about boys, okay. So students, your first number pronoun you, it's a correct pronoun. So students, take below this first number pronoun you, and students, when we take a you pronoun, then our sentence become father says boys you should not shout so loudly. It's mean कि पिताजी ने कहा लड़कों या बालकों आपको बहुत अधिक तेज नहीं चिल्लाना चाहिए. क्लियर? So student, let's see third number sentence. Students, your third number sentence is Nikhil told Mr. Singh, comma inverted comma we oblique I live on Orchard Road. Okay. निखिल टोल्ड, इट्स मीन निखिल ने कहा. टोल्ड इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ टेल मीन्स कहना. टोल्ड मीन्स कहा. मिस्टर सिंह इट्स मीन श्रीमान सिंह. ओके. वी मीन्स हम, आई मीन्स में. ओके. लीव मीन्स रहते हैं ऑन ऑर्चर्ड रोड, इट्स मीन ऑर्चर्ड रोड पर. ओके. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक फर्स्ट नंबर प्रोनाउन वी, देन अवर सेंटेंस बिकम निखिल टोल्ड मिस्टर सिंह वी लीव ऑन ऑर्चर्ड रोड. इट्स मीन कि निखिल ने श्रीमान सिंह से कहा हम ऑर्चर्ड रोड पर रहते. ओके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस ओनली निखिल ही तो वन पर्सन है. ओके. जो मिस्टर सिंह से बात कर रहे हैं. तो निखिल ने कहा कि श्रीमान सिंह से कहा कि हम ऑर्चर्ड रोड पर रहते. तो निखिल के साथ यहाँ पे तो और कोई नहीं है ना, निखिल सिंगल है ना. तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. एंड व्हेन वी टेक सेकंड नंबर प्रोनाउन आई, देन अवर सेंटेंस बिकम निखिल टोल्ड मिस्टर सिंह आई लिव ऑन ऑर्चर्ड रोड. इट्स मीन निखिल ने श्रीमान सिंह से कहा कि मैं ऑर्चर्ड रोड पर रहता हूँ. ओके. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस. ओके, करेक्ट सेंटेंस है. So students, your second number pronoun I, it's a correct pronoun. Okay, because students, in this third number sentence, निखिल it's a singular. Okay, single है, एक वचन है, तो हम इसके साथ I का यूज़ करेंगे. We can't use we pronoun. Clear? So students, take below this second number pronoun I, and then your sentence become निखिल told Mr. Singh I live on Orchard Road. It's mean कि निखिल ने श्रीमान सिंह से कहा कि मैं ऑर्चर्ड रोड पर रहता हूँ. Clear? Students, let's see 4 number sentence. Students, of 4 number sentence is Mohan said, comma inverted comma, Miss Joshi is Priya's class teacher. Full stop. C oblique you likes Priya very much. Inverted comma close full stop. Okay. Mohan said, it's mean मोहन ने कहा. said it's a second form of say means कहना. said means कहा. Okay. Miss Joshi it's means श्रीमती जोशी. it means है Priya's class teacher. it's mean प्रिया की कक्षा अध्यापक. Okay. तो मोहन ने कहा कि श्रीमती जोशी प्रिया की कक्षा अध्यापक है. Okay. So students, likes Priya very much, it's mean प्रिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती है. So students, when we take first number pronoun C, then our sentence become Mohan said Miss Joshi is Priya's class teacher and she likes Priya very much. Okay, it's mean कि मोहन ने कहा श्रीमती जोशी प्रिया की कक्षा अध्यापक है, वह प्रिया को बहुत अधिक पसंद करती है. And when we take a second number pronoun you, then our sentence become Mohan said Miss Joshi is Priya's class teacher, you likes Priya. इट मीन कि मोहन ने कहा कि श्रीमती जोशी प्रिया की कक्षा अध्यापक है और आप प्रिया को बहुत अधिक पसंद करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ योर सेकंड नंबर सेंटेंस, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज इन दिस 4 नंबर सेंटेंस हियर वी टॉक अबाउट मिस जोशी की बात करें. एंड वी हैव रीड व्हेन वी टॉक अबाउट अ गर्ल और फीमेल नाउन, जब हम गर्ल की बात करते हैं, फीमेल नाउन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स वी यूज सी. ओके. तो स्टूडेंट्स, टेक बिलो दिस फर्स्ट नंबर प्रोनाउन सी एंड देन अवर सेंटेंस बिकम मोहन सैड मिस जोशी इज प्रियाज क्लास टीचर, सी लाइक्स प्रिया वेरी मच. इट्स मीन मोहन ने कहा श्रीमती जोशी प्रिया की कक्षा अध्यापक है, वे प्रिया को बहुत अधिक पसंद करती हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सी फिफ्थ नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स, ऑफ फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज मिस्टर खन्ना इज द स्पोर्ट्स टीचर इन अवर स्कूल. ओके. एंड ही ऑब्लिक सी इज अ गुड टीचर. तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक फर्स्ट नंबर मिस्टर खन्ना, इट मीन्स श्रीमान खन्ना. इट मीन्स है द स्पोर्ट्स टीचर, इट मीन खेल शिक्षक. इन मीन्स में अवर स्कूल मीन्स हमारे स्कूल में. ओके. मिस्टर खन्ना इज द स्पोर्ट्स टीचर इन अवर स्कूल. इट्स मीन श्रीमान खन्ना हमारे स्कूल में खेल शिक्षक हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, एंड लेट्स सी नेक्स्ट ही मीन्स वे इज अ गुड टीचर. इट्स मीन एक अच्छे अध्यापक है, एक अच्छे शिक्षक है. ओके. सो स्टूडेंट, व्हेन वी टेक फर्स्ट नंबर प्रोनाउन ही, देन अवर सेंटेंस बिकम मिस्टर खन्ना इज द स्पोर्ट्स टीचर इन अवर स्कूल एंड ही इज़ अ गुड टीचर. ओके. इट्स मीन कि मिस्टर खन्ना हमारे स्कूल में खेल शिक्षक है, वह एक अच्छे अध्यापक है. ओके. और वी कैन से आल्सो दैट वह एक अच्छे शिक्षक है. टीचर मीन्स अध्यापक या शिक्षक. ओके. स्टूडेंट, वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल और बॉयज़. हम बॉयज़ के लिए या मेल नाउन्स के लिए हम ही का यूज़ करते हैं. एंड वी ऑलवेज यूज ही फॉर फीमेल नाउन्स और गर्ल्स के साथ में या फीमेल नाउन्स के साथ में हमेशा हम सी का यूज़ करते हैं. एंड देन वी कैन सी इन दिस फिफ्थ नंबर सेंटेंस दैट मिस्टर खन्ना, इट्स मीन श्रीमान खन्ना, इट्स अ मेल नाउन है ना. ओके. किसी मैन का या बॉय का नेम है ना मिस्टर खन्ना, मेल नाउन है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी यूज ही फॉर मिस्टर खन्ना. क्लियर? So student, take below this first number pronoun he. Okay. And then let's see 6 number sentence. Students, so 6 number sentence is they obligate have the best football team in town. Okay. So students, so
The correct pronoun in this 6 number sentence is they. Okay, because students we have read that we always use it for non-living thing. Non-living thing के साथ में हम लोग it का यूज़ करते हैं. It means होता ही है. Okay, it means ये होता है ये. अब किसी non-living thing के पास तो फुटबॉल टीम नहीं हो सकती ना. तो students your first number pronoun they it's a correct pronoun. So students take below this first number pronoun they answer, then your sentence become they have the best football team in town. Okay, they means उनके हैव मीन्स पास में हैव इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन परफॉर्म द बेस्ट इट्स मीन सबसे अच्छी बेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड. ओके, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. फुटबॉल टीम इट्स मीन फुटबॉल की टीम, फुटबॉल की टोली. ओके, इन टाउन इट्स मीन टाउन में, टाउन में स्टूडेंट्स होता है कस्बा. ओके, तो कस्बे में दे हैव द बेस्ट फुटबॉल टीम इन टाउन इट्स मीन कि उनके पास कस्बे की सबसे अच्छी फुटबॉल टीम है. टाउन में स्टूडेंट्स कस्बा होता है एंड शहर भी होता है. ओके, तो उनके पास शहर की या कस्बे की सबसे अच्छी फुटबॉल टीम है. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी 7 नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स और 7 नंबर सेंटेंस इज माय फादर लव्स कुकिंग फुल स्टॉप इट ऑब्लिक ही कुक्ड अ बिग लंच फॉर अस. ओके, सो स्टूडेंट्स माय फादर मेरे पिताजी लव्स मीन्स बहुत अधिक पसंद करते. कुकिंग मीन्स खाना पकाना. ओके, माय फादर लव्स कुकिंग इट्स मीन कि मेरे पिताजी खाना पकाना बहुत अधिक पसंद करते. ओके, एंड स्टूडेंट्स कुक्ड इट्स मीन पकाया. कुक्ड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ कुक. ओके, कुक मीन्स पकाना, कुक्ड मीन्स पकाया. अ बिग लंच इट्स मीन एक बड़ा दोपहर का भोजन. इट्स मीन बहुत सारा फूड, बहुत सारा खाना दोपहर के लिए. फॉर अस इट्स मीन हमारे लिए. ओके, स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल नाउन्स और बॉयज़. बॉयज़ के लिए या मेल नाउन्स के लिए हम हमेशा ही का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स अवर गिवन प्रोनाउंस आर फर्स्ट इज इट एंड सेकंड इज ही एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज़ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग इट का यूज़ करते हैं. एंड हेयर वी टॉक अबाउट फादर. फादर की बात कर रहे हैं तो फादर इट्स अ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग है, नॉट नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है ना. तो स्टूडेंट्स वी कांट यूज़ इट फॉर this 7 number sentence for father. Okay, so students take below the second number pronoun he. Okay, and then our sentence become my father loves cooking and he cooked a big lunch for us. It's mean मेरे पिताजी खाना पकाना बहुत अधिक पसंद करते हैं. उन्होंने हमारे लिए बहुत अधिक दोपहर का खाना पकाया. Okay, clear? So students, let's see 8 number sentence. Students, so 8 number sentence is he oblique you are supposed to serve your country. Okay, so students, the correct pronoun of this 8 number sentence is you. Okay, students, when we take first number pronoun he, then our sentence become he are supposed to serve your country. Okay, it's mean कि ही मीन्स वह या उसने, आर मीन्स है, सपोज इट्स मीन कि मान लीजिए. ओके, टू सर्व इट्स मीन कि सर्व करना, सेवा करना. योर कंट्री इट्स मीन अपने देश की. ओके, ही आर सपोज टू सर्व योर कंट्री इट्स मीन कि उसने मान लिया कि उसने देश की सेवा की. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस एंड स्टूडेंट वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब आर विद प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल नाउन के साथ में आर का यूज़ करते हैं बिकॉज आर इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन प्लो फॉर्म. प्लो फॉर्म में है तो प्लूरल सब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे. वी होगा, दे होगा. ओके, यू हो सकता है. ओके, वी कांट यूज़ आर विद अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के साथ आर का यूज़ नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर pronoun you it's a correct pronoun. So students stick below this second number pronoun you and student then your sentence become you are supposed to serve your country. Okay, you means आप, आर मीन्स है सपोज. आर सपोज इट्स मीन मान लीजिए. ओके, यू आर सपोज इट्स मीन आप मान लीजिए. टू सर्व योर कंट्री इट्स मीन कि आपको अपने देश की सेवा करनी है. ओके, यू आर सपोज टू सर्व योर कंट्री इट्स मीन कि आप मान लीजिए कि आपको अपने देश की सेवा करनी है. ओके, स्टूडेंट्स लेट्स सी 9 number sentence. स्टूडेंट्स और 9 number sentence is Mr. Datta loves animals. See they feeds stray animals every day. Okay, तो स्टूडेंट्स सॉरी मिसेस दत्ता. ओके, मिसेस दत्ता इट्स मीन श्रीमती दत्ता. ओके, लव्स इट्स मीन बहुत अधिक पसंद करती. एनिमल्स मीन्स जानवर. ओके, मिसेस दत्ता लव्स एनिमल्स इट्स मीन श्रीमती दत्त जानवरों को बहुत अधिक पसंद करती है. एंड सिंस यू गिवन प्रोनाउंस आर सी एंड सेकंड इज दे. ओके, एंड सिंस वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज सी फॉर फीमेल नाउन्स और गर्ल्स. गर्ल के लिए या हम फीमेल नाउन्स के साथ में हमेशा सी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एंड स्टूडेंट मिसेस दत्ता. ओके, इट्स मीन कि श्रीमती दत्ता. ओके, तो श्रीमती दत्ता है तो स्टूडेंट्स किसी वुमेन का या किसी गर्ल का नेम होगा. ओके, फीमेल नाउन है. ओके, तो स्टूडेंट्स here we use C pronoun for Mrs. Datta in this 9 number sentence. Okay, student we can't use they pronoun for this Mrs. Datta. Okay, Mrs. Datta के लिए हम they का यूज़ नहीं कर सकते because they it's a pronoun है. Okay, plural word है. Clear? So students stick below this first number pronoun C and then our sentence become Mrs. Datta loves animals. She feeds stray animals every day. Okay, Mrs. Datta it means श्रीमती दत्ता. Okay, Mrs. Datta it means श्रीमती दत्ता. loves means बहुत अधिक पसंद करती है. animals it means जानवरों को. Mrs. Datta loves animals it means श्रीमती दत्ता जानवरों को बहुत अधिक पसंद करती है.
सी फीड्स स्ट्रे एनिमल्स एवरी डे. ओके, सी मीन्स वह, फीड्स इट्स मीन कि खिलाती है, स्ट्रे एक्सट्रीम इंस्टेंस होता है कि आवारा या भटके हुए घूमते हुए एनिमल्स. ओके, एनिमल्स मीन्स जानवर. स्ट्रे एनिमल्स इट्स मीन जो पैट एनिमल्स नहीं होते ना, जो ऐसे ही घुमा करते हैं, भटके हुए एनिमल्स होते हैं जो किसी के पैट नहीं होते, पालतू नहीं होते, उसे बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स. इट्स मीन कि भटकते हुए या घूमते हुए जानवर, आवारा जानवर. ओके, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन या हर दिन. ओके, तो सी फीड्स स्ट्रे एनिमल्स एवरी डे इट्स मीन कि वह प्रत्येक दिन या हर दिन भटकते हुए या घूमते हुए जानवरों को खाना खिलाती हैं. ओके, तो मिसेस दत्ता लव्स एनिमल्स, सी फीड्स एनिमल्स एवरी डे. इट्स मीन कि श्रीमती दत्ता जानवरों को बहुत अधिक पसंद करती हैं. ओके, जानवरों से बहुत अधिक प्यार करती हैं और प्रत्येक दिन या हर दिन वह भटकते हुए या घूमते हुए जानवरों को खाना खिलाती हैं. ओके, स्टूडेंट्स लेट्स सी 10 number sentence which is last sentence of this exercise. Okay, so look clearly. Students, your 10 number last sentence of this exercise is C/V play cricket in a big playground full stop. Okay, so students, we have read that we always use we. Okay, always use we फॉर प्लूरल के लिए हम हमेशा वी का प्रोनाउन का यूज़ करते हैं बिकॉज वी इट्स अ प्लूरल प्रोनाउन, एक प्लूरल प्रोनाउन है. ओके, एक बहुवचन सर्वनाम है. ओके, सो स्टूडेंट्स वी कांट से सी प्ले क्रिकेट इन अ बिग प्लेग्राउंड. ओके, कि वह एक बड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रही है. तो स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन को अकेले तो क्रिकेट नहीं प्ले कर सकते हैं ना, तो क्रिकेट के लिए एक क्रिकेट की टीम होनी चाहिए. मोर देन वन उसमें पर्सन होते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स योर सेकेंड नंबर pronoun we, it's a correct pronoun. So students stick below the second number pronoun we and then your sentence become we play cricket in a big playground. Okay, we means हम, play it's mean खेलना, cricket it's mean cricket, in means में, आ means एक, big means बड़े, playground it's mean खेल का मैदान. Okay, we play cricket in a big playground it's mean कि हम एक बड़े खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं. Okay, so students we have read and solved this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay, and since in this exercise your correct pronouns are, first number correct pronoun is we, W-E-V, and second number correct pronoun is you means आप, third number correct pronoun is I, it's mean मैं, and fourth number correct pronoun is she, it's mean वह, five number correct pronoun is he, it's mean वह, six number correct pronoun is they, it's mean we, and seven number correct pronoun is he, it's mean वह, and eight number correct pronoun is you, it's mean आप या तुम, and next nine number correct pronoun is she, it's mean वह, and last 10 number correct pronoun is we, it's mean हम. Clear? So stand, finally we have read and solved this exercise in our English language book Cornerstone, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay, so students, I think I have no need to explain this exercise again, because students I have explained and solved this exercise of this chapter in our English language book Cornerstone. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise which is page number 36 and 37 in your English language book Cornerstone. And students also complete this exercise A, choose the correct words of this chapter 8 in your file English language notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn exercise A which is page number 36 and 37 of this chapter 8 from your English language book Cornerstone. It's your today's homework. And students, I hope you have no problem for learning work, because students I have explained this exercise A. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise A which is page number 36 and 37 of this chapter 8 in your English language book Cornerstone. And students also complete this exercise A, choose the correct words of this chapter 8 in your English language notebook with your best handwriting and send me over here. Thank you.